Hello students, today we will be seeing a chapter permutations and combination. We will be starting with basics of permutation and combination, and basic thing of permutation and combination is factorial notation. So let's see what is factorial notation. Factorial, it's a kind of function, and this factorial is defined only for natural numbers. So here for small n in the set of natural numbers. If n, small n is any natural number, then n factorial. See, first of all हम लोग देखेंगे कि n factorial, जो ये factorial है, इसके लिए notation होता है n exclamatory mark like this, and it is read as n factorial. N factorial can also be represented like this. So these both are notations for n factorial, but basically or mainly we will be using this notation. Okay, so let's see what is n factorial, how it is defined. N factorial is simply defined as n into number which comes before n, that is n minus 1, then n minus 1 के पहले n minus 2, like this we will multiply these numbers till 1. So this is how n factorial is defined. Let's take one example. जैसे कि suppose हमको find out करना है 5 factorial. तो 5 factorial is simply 5 into, अब 5 के पहले जो natural number आता है वो 4, 4 के पहले 3, then 2 and then 1. So this is what 5 factorial is. अगर आप इसको calculate करोगे तो it is 120. Then let's see how to find 7 factorial. Same way, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and then this can be multiplied. Now one question will be there in your mind ki why we are using this factorial notation. The purpose for using this factorial notation is that in the chapter permutations and combination we will be dealing with very big numbers. So for our convenience, or to for writing numbers according to our convenience, we use this factorial notation. So this is how factorial is defined. Then there are some important points which we will be using here. Very first point is value of 0 factorial. See, this is defined for natural numbers, but 0 factorial is a special kind of case, and 0 factorial is defined as 1. And second important result is about n factorial, that is writing greater number factorial in terms of smaller number factorial. So n factorial को हम लिखते हैं n into n minus 1 factorial, and repeatedly this result can be used according to questions. जैसे कि अगर इसका example हमको लेना हो, तो if we have 15 factorial, तो 15 factorial को हम लिख सकते हैं 15 into 15 के पहले जो नेचुरल नंबर है वो है 14 फैक्टोरियल. अगर आपको ये रिजल्ट दोबारा यूज करना है तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 15 into 14 into 13 फैक्टोरियल. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रिजल्ट है ये हम यूज कर सकते हैं. इसको बेसिकली जो हम कहते हैं expressing greater number factorial in terms of smaller number factorial. Now let's see some problems based on factorial. So here we need to evaluate 8 factorial minus 6 factorial. So in order to solve such questions, see 8 and 6, out of 8 and 6 greater is 8. So we will be expressing 8 factorial in terms of 6 factorial using our result, which says ki n factorial is n into n minus 1 factorial. ये रिजल्ट हम एक बार नहीं रिपीटेडली यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड होगी. तो 8 फैक्टोरियल को जो है वो हम लिखेंगे 8 into 7. यहाँ पर 6 फैक्टोरियल होने की वजह से हम 8 को 6 के टर्म्स में ला रहे हैं. तो 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल. अब इन दोनों में से कॉमन है 6 फैक्टोरियल, तो ब्रैकेट में बचता है 8 7 56 minus 1. सो इट इज सिंपली 6 फैक्टोरियल into 55. एंड इसके बाद आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल करके विच इज 720
into 55. We know 6 factorial क्या होता है, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो 720 into 55 इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, जहां पर इट इज 8 minus 6 होल फैक्टोरियल. मतलब यहाँ पर जो है ब्रैकेट है 8 minus 6 और फिर फैक्टोरियल है. तो बच्चों ये जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते 8 और 6 में. ओके, वी कैन नॉट राइट दिस एज 8 फैक्टोरियल minus 6 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को जो है एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना है. फैक्टोरियल इज अ काइंड ऑफ फंक्शन. ओके, सो यहाँ पर ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है. 8 minus 6 जो कि होता है 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1 मीन्स 2. सो अब आप देखिए 8 फैक्टोरियल minus 6 फैक्टोरियल एंड 8 minus 6 होल फैक्टोरियल, ये जो दोनों है इनकी वैल्यू अलग अलग आती है. तो इसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं. सो रिजल्ट नंबर 1. अब देखिए जो अगर ये नेगेटिव के लिए है तो पॉजिटिव के लिए भी वही रिजल्ट होगा. मतलब अगर आप 8 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल एंड 8 plus 6 होल फैक्टोरियल निकालोगे तो उनकी वैल्यूज भी अलग आएगी. मतलब जो रिजल्ट है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, फॉर m एंड n. एक दो नंबर लेते हैं m और n, नेचुरल नंबर्स. तो m plus n होल फैक्टोरियल, ये पहला रिजल्ट. एंड दूसरा रिजल्ट होगा नेगेटिव के लिए m minus n होल फैक्टोरियल. नाउ m plus n whole factorial is not equal to m factorial plus n factorial. Okay, you cannot distribute factorial over positive sign. It is not a number, it is a function. Similarly, m minus n whole factorial is not equal to m factorial minus n factorial. Very 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 important point, because यहीं पर है जो बच्चे मेनली मिस्टेक करते हैं. तो आप प्लीज इन दो पॉइंट्स को याद रखिए. अभी लेटर ऑन हम लोग और भी ऐड करेंगे. लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. अब देखिए ये है 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. तो ये जो 12 फैक्टोरियल है वो ग्रेटर है एंड 6 इज स्मॉलर. तो आर रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ग्रेटर नंबर फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर नंबर फैक्टोरियल इज द ट्रिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द फैक्टोरियल एक्सरसाइज. फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 into 11 into 10 लाइक दिस. टिल हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 6 फैक्टोरियल तक. सो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल. अब ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल. अब जो ये नंबर्स बचे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. दिस विल गिव यू 132. मैं ऐसे ग्रुप्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 90 into 56. अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट सम बिग नंबर. अब देखिए नंबर्स आर सेम, थर्ड एंड फोर्थ में नंबर्स आर सेम. अब यहाँ पे है 12/6 होल फैक्टोरियल. तो सेम वे अभी यहाँ पर फैक्टोरियल आप 12 के लिए एंड 6 के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे. तो 12/6 को पहले सॉल्व करेंगे. 12/6 होता है 2 एंड 2 फैक्टोरियल इज सिंपली 2. तो देखिए ये और ये इसकी वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी आपको. तो ये हो गया डिवीजन के लिए. अब सेम चीज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देख सकते हैं. अब यहाँ पर है 3 into 2 होल फैक्टोरियल, राइट. तो यू कांट मल्टीप्लाई फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज नॉट अ नंबर. सो 3 into 2 पहले हम निकालेंगे विच इज 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल यू कैन इजीली इवेल्युएट विच इज 720. ओके, एंड अगर ये आपको फाइंड आउट करना है 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल जो है वो होता है 3 into 2 into 1 एंड 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 1. Now multiply these numbers, you will get 12. तो देखिए आप this number and this number, are they equal? No, they are not equal. So point number 3 or result number 3 can be stated as m into n whole factorial is not equal to m factorial into n factorial. And fourth result जो हम लिख सकते हैं that is about division, m by n whole factorial is not equal to m factorial upon n factorial. तो बच्चों जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं.
अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स. Now let's see another examples where we have to compute 9 factorial upon 3 factorial into 6 factorial. तो अब देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ पर अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 3 and 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं 18 factorial, which is incorrect. Here what we will be doing is, first of all देखिए ये 9 factorial है और ये 6 factorial है, so we'll express 9 factorial in terms of 6 factorial first. Okay, so what we can write is 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon, और ये जो 3 factorial है इसको हम simply 3 into 2 into 1 लिख सकते हैं because this is its expansion into 6 factorial. अब 6 factorial easily cancel हो सकता है. Now 3 ones are 3 threes are 9, 2 ones are 2 fours are 8. So देखिए अब ये 12, 3 fours are 12 into 7 is 84. So 84 is the value. Now next example, 8 factorial upon 7 minus 3 whole factorial. अब यहाँ पर सबसे पहले हमको 7 minus 3 की वैल्यू निकालनी है, ना कि ये फैक्टोरियल को अंदर ले लेना है. 7 factorial minus 3 factorial, that is incorrect. See why I am explaining these incorrect steps, because these are the mistakes which students tends to make. Okay, so ये mistakes हमने नहीं करनी है. अब ये सिंपल सा हो गया 8 factorial upon 4 factorial. Again and again I am repeating this point कि trick for factorial exercise is expressing greater number factorial in terms of smaller number factorial. So 8 factorial को हम लिखेंगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial. We'll stop here because यहाँ पर denominator में 4 factorial है, तो ये दोनों cancel हो जाएंगे. Now easily we can multiply them. 8 sevens are 56, 6 5s are 30, एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1680. So this is how we can compute or we can evaluate such factorial expressions. अब देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट है, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल को इवेल्युएट किया, मतलब फैक्टोरियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके एक नंबर हम लोग लेकर आए हैं. अब हम देखेंगे कि इफ some expression is given, how to bring it in factorial terms. factorial के terms में हम किस तरह से ला सकते हैं. तो you just observe this expression carefully. यहाँ पर जो है आपको numbers दिखेंगे, multiply किए हुए numbers है, और अगर आप इनका order देखोगे तो it starts with 5, 6, तो natural numbers है ये, natural numbers starting from 5 until 10. okay, so अगर हमको factorial चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, दैट वी नीड टू थिंक. तो यहाँ पर जो है अगर आप ले लो 1 into 2 into 3 into 4 एंड आगे ये पूरी एक्सप्रेशन अगर आप लिख दो लाइक दिस टिल 10, तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा. बट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स, वॉट एवर वी आर मल्टीप्लाइंग, to maintain balance we need to divide that expression by same thing. तो यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4, तो सेम वे हमको उसी से यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा so that they can cancel and this will be unaffected. अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर that is simply 10 factorial and denominator is simply 4 factorial. So this is how we bring any expression in factorial form. So this is first example. Let's see second example. Now if you will see second example, these are not numbers like consecutive natural numbers नहीं है, successive natural numbers नहीं है, they are the numbers with the gap or difference of 5, or you can say these are the numbers which are multiple of 5. तो इनको हमने क्या करना है, कैसे हम इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लाएंगे, that we will see. तो देखिए ये 5 को हम as it is लिख सकते हैं, बाकी के जितने भी numbers बचे हैं उनको हम 5 के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2, 15 is 5 into 3, 20 is 5 into 4 and 25 is 5 into 5. ओके, अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, सो हम इसको लिख सकते हैं 5 raised to 6 into, अब और नंबर्स कौन से बच गए हैं 2 3 4, राइट, और एंड हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, तो 1 into 2 into 3 into 4 हम इसे लिख सकते हैं. सो इट इज सिंपली 5 raised to 6 into, नाउ दिस
thing can be written in factorial form as 4 factorial. So this is how this expression can be expressed in factorial form. Now let's see how we can solve kind of factorial equations. Equation आपको पता है ये क्या होती है? Equation where we find value of variable. So here it is a kind of factorial equation because it contains factorial terms and one variable is there which is n. So we'll see how we can find n when this factorial equation is given. तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब जैसे कि इसको हमको सॉल्व करना है, तो लेट्स राइट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में देर आर 2 factorial terms, 6 factorial and 4 factorial. So as I said, greater number factorial in terms of smaller number factorial. तो 6 factorial को 4 factorial के terms में हम लेकर आते हैं. So 3/6 into 5 into 4 factorial हम इसको लिख सकते हैं, प्लस 1/4 factorial. और हम कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं? हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं n factorial is n into n minus 1 factorial. This result we are using and we are not using it once, we are using this result twice here. अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 1s are 3 2s are. Now left hand side as it is. अब इन दोनों में इफ यू विल ऑब्जर्व दिस, यू कैन टेक 1/4 फैक्टोरियल को कॉमन, इसको हम कॉमन ले सकते हैं. अब यहाँ पर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में जो है वो बचता है 1/2 5s are 10, 1/10 plus 1. Okay, so now n as it is, we can shift 8 factorial on this side, 8 factorial upon 4 factorial into, now 1/10 plus 1 is 11/10. अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग आवर रिजल्ट. 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में लेकर आइए. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 11/10. तो 4 factorial can be cancelled. Now 5 1s are 5 2s are, 2 1s are 2 4s are. Now we can multiply them. So n is equal to, if we'll multiply them, what we will get is 28 into 66. अब इसको हम मल्टीप्लाई करके जो है वो फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके. ओके, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ n. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल वेयर इट इज n plus 1. अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फैक्टोरियल जो था नंबर्स के साथ था, वेरिएबल के साथ फैक्टोरियल नहीं था. बट इस एग्जाम्पल में क्या है, जो आपका फैक्टोरियल है वो वेरिएबल के साथ है. n plus 1 फैक्टोरियल एंड n minus 1 फैक्टोरियल. अब इसमें से आपको ये पता करना है कि विच टर्म इज ग्रेटर, n plus 1 इज ग्रेटर और n minus 1 इज ग्रेटर. तो ऑब्वियसली n plus 1 इज ग्रेटर. ओके, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि n is 10, तो n plus 1 मतलब 11 एंड n minus 1 is 9. तो 11 is greater than 9 मतलब n plus 1 is greater. So greater number in terms of smaller number factorial को हम लिख सकते हैं. And how we can write it? We can write n plus 1 as it is. अब हम कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल में? हम एक एक नंबर पीछे जाते हैं. तो n plus 1 as it is, n plus 1 के पहले क्या आएगा? n. And n के पहले क्या आएगा? n minus 1. And we will stop here because here is a term n minus 1 whole factorial equal to 42 into n minus 1 whole factorial. Now these two terms can be cancelled. So it is simply n plus 1 into n is equal to 42. अब देखिए बच्चों, इसको जो है आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दिस एंड दैट शॉर्टकट इज, सी द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं. तो राइट हैंड साइड को भी हम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में लिखेंगे. सो जस्ट सी कि 42 को फैक्टराइज करिए एंड क्या हम उसको लिख सकते हैं? यस, 42 को लिख सकते हैं हम 6 into 7 और 7 into 6. बट यहाँ पर हमको ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है कि हमें 6 into 7 लिखना है कि 7 into 6. उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड देखना है. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए n plus 1 और n में से बड़ा कौन है? n plus 1 इज ग्रेटर. तो इसको जो है 42 को ग्रेटर इंटू स्मॉलर.
7 6 ऐसे लिखेंगे. अब ऐसे हम लिख क्यों रहे हैं? बिकॉज वी विल बी कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड, फर्स्ट टर्म विथ फर्स्ट टर्म into second with second. Okay, so n plus 1 is 7, n is 6 जब हम कंपेयर करते हैं. एंड अगर आप दोनों को सॉल्व करोगे तो n is equal to 6. दोनों को सॉल्व करने का मतलब पहली को सॉल्व करो, सेकंड इज ऑलरेडी सॉल्व, एंड बोथ शुड गिव यू सेम आंसर. तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या मिलती है? 6 मिलती है. एंड ये वैल्यू जो है वो सेम ही मिलनी चाहिए, अलग नहीं मिलनी चाहिए. अलग अगर आपको अलग मिल रही है मतलब आपने यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक करी हुई है. तो प्लीज क्रॉस चेक दिस, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व सच factorial equations. So another problems where again we need to find and see. Now this is the factorial kind of factorial equation only, but given in ratio form. These two dots मतलब ratio. तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? We will convert. Now ratio का मतलब आपको पता है, ratio is a kind of division. So we'll convert division to multiplication. और जब भी हम multiplication में convert करते हैं तो यहाँ पे जो ये इट्स फ्रैक्शन उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, एंड 5:3 इज सिंपली 5/3. नाउ n फैक्टोरियल कैन बी कैंसल्ड. नाउ योर न्यूमरेटर में देखिए क्या रिमेनिंग है? 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 होल फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर में है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 होल फैक्टोरियल. सो नाउ 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल में से ग्रेटर इज 5 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल के टर्म्स में लाएंगे. 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल अपॉन दिस 3 फैक्टोरियल विल बी रिटन एज इट इज. अब आपको देखना है बच्चों कि n माइनस 5 एंड n माइनस 3 में से विच वन इज ग्रेटर. अब देखिए n और n ये तो सेम है. अब सेम नंबर में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ग्रेटर होगा कि 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ग्रेटर होगा. मतलब सेम नंबर में से जब हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर ग्रेटर होता है. मतलब n माइनस 3 इज ग्रेटर. तो n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम n माइनस 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में लाएंगे. तो यहाँ पर ये जो n माइनस 5 होल फैक्टोरियल है उसको हम इसी तरह से लिख देंगे. n माइनस 3 होल फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 3. अब n माइनस 3 के पहले क्या आएगा? n माइनस 3 के पहले होगा n माइनस 3 माइनस 1 विच इज n माइनस 4, एंड n माइनस 4 के पहले क्या होगा? n माइनस 4 माइनस 1 विच इज n माइनस 5 फैक्टोरियल. यहाँ पे हम रुक जाएंगे बिकॉज दीज टू टर्म्स कैन बी कैंसल्ड इक्वल टू 5/3. अब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल को भी हम कैंसिल कर सकते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू इज whichever term is containing variables उसको हम हमेशा न्यूमरेटर में लेकर आते हैं. तो ये दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे. तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 और n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 वन एंड सेम थिंग विल बी इक्वल टू, वी आर शिफ्टिंग दिस टर्म, इसको हम वहां पर लेकर जा रहे हैं. तो 5 इंटू 4 20 एज इट इज. तो 5/3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे. सो विच विल बी 3/5. 5 1 जा 5 4 जा. Okay, so now it is n minus 4 into n minus 3 equal to, see 4 into 3 12 हम लिख सकते हैं, but we will not write 12 because अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं it is product of two consecutive natural numbers. अब इन नेचुरल नंबर्स में से n minus 4 और n minus 3 कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है वो आपको देखना होगा. तो n माइनस 4 एंड n माइनस 3 में से n माइनस 4 इज स्मॉलर एंड n माइनस 3 इज ग्रेटर. तो ये जो राइट हैंड साइड में हमने प्रोडक्ट लिखा है इसको भी हमको इसी फॉर्म में लिखना होगा, स्मॉलर इंटू ग्रेटर. मतलब हम 4 इंटू 3 को लिखेंगे 3 इंटू 4, वैल्यू सेम रहती है. एंड नाउ वी विल कंपेयर स्मॉलर विथ स्मॉलर एंड ग्रेटर विथ ग्रेटर. सो n माइनस 4 इज इक्वल टू 3 and n minus 3 is equal to 4, and see both will give you same value of n, that is n is equal to 7. So this is how we solve such such equations whenever it is product of two consecutive natural numbers. On left hand side right hand side को भी हम
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लाकर उसको कंपेयर करते हैं और इजीली इसको सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेक व्हिच इज योर 15 minus n factorial upon 13 minus n whole factorial equal to 12, and here we need to find value of n. तो सेम ट्रिक बच्चों, सेम ट्रिक, दैट इज ग्रेटर नंबर फैक्टोरियल in terms of smaller number factorial is the trick to solve any problem from factorial. Okay, तो 15 minus n and 13 minus n में से greater कौन है? Very obvious, 15 minus n is greater. तो 15 minus n factorial को हम लिख सकते हैं 15 minus n into 15 minus n minus 1, right? That will give you 14 minus n. उसके बाद 15 minus n minus 2, मतलब हम ऐसे बैकवर्ड में लिख रहे हैं फैक्टोरियल. अब यहाँ पर हम क्यों रुक जाते हैं? बिकॉज डिनोमिनेटर में 13 माइनस एन फैक्टोरियल और वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इक्वल टू 12. अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 15 माइनस एन एज इट इज, दिस विल बी 14 माइनस एन एंड अगेन दिस इज 13 माइनस एन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 minus n whole factorial equal to 12. These two terms can be cancelled. 15 minus n into 14 minus n equal to 12. Same thing again. Left hand side is product of two consecutive natural numbers. तो right hand side में भी same thing we want. Just ये ध्यान रखना है कि greater into smaller है कि smaller into greater. Same चीज़ हमने यहाँ पर लानी है. तो here it is greater into smaller. तो 12 को हम greater into smaller मतलब 4 into 3 लिखेंगे. 12 जो है वो सिर्फ 4 into 3 नहीं 6 into 2 भी होता है. But according to left hand side we will write our right hand side. Now compare. So 15 minus n is equal to 4. 14 minus n is equal to 3. So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 15 minus 4 equal to n, this will give you 14 minus 3 is equal to n, and both will give you same value, that is n is equal to 11. So this is how we solve any question from factorial, whether it is evaluate or compute factorial expressions, or to express any given expression in the form of factorial, or to solve any factorial equation. Trick is greater number factorial in terms of smaller number factorial. So this is the basic of permutation and combination. This chapter is not only important for your 11th or 12th, but this is important for your competitive exams also. This forms the base of permutation and combination. Later on in my another videos, we will be seeing fundamental principles of counting, that is next part of permutation and combination. So thank you so much.